works. So we are going to do cat and dog classifier. Cat and dog classifier we are going to implement, and this cat and dog classifier is obviously we are going to use some standard data set for cat and dog classifier. So kind of real images we are going to use. So whatever the problems we have solved it, that are like uh, your MNIST data set we use for CNN purpose. So that is kind of very small data set, and its size is also small, that is 28 by 28 only. But if you want to build the model that are really with respect to uh, uh, like real data. So real data means it might be like your images are 1,000 pixels by 1,000 pixels. So how to work with such kind of problems? How to work with such kind of problems? That we are going to discuss. So this on real images of cat and dog, we are going to work with, and we are going to use some convolutional and max pull or pulling layers in sequence. So ये कितने layers use करने, that we have to decide. How many kernels we have to use, that also we have to decide. Yeah. Yes, screen is shared. Yeah, it is shared. प्रद्युम्न दिसते स्क्रीन इथं तर? ठीक आहे. ओके ओके, मी परत शेअर करतो. Is it visible now? Okay. Okay, so what we are discussing about is, हाँ, so we are going to do dog implement cat and dog class. वैसे देखे तो ये भी छोटा ही प्रॉब्लम है. cat and dog मतलब कि बड़ा प्रॉब्लम नहीं, only two classes are there. But जो input data है, that real data we are going to use over here. जो भी input में data है, that is the real data we are going to use here. So obviously if you want to work with real images, and real images में अगर उस image में cat है कि dog है, अगर ये आपको find out करना है, तो we are going to use CNN. So that is what the benefit of CNN. अगर आपको इसके basis पे ANN करना है, तो ANN is not going to give much accuracy. तो बेसिकली अगर आपको चाहे तो you can just implement ANN or cat and dog. You can just look for its validation accuracy. So आपको कम मिलेगा, लेकिन we are not going to waste our time in implementing ANN or cat and dog. So instead of that, we are directly go for using CNN. तो हम हमारा खुद का CNN यूज करेंगे, एंड लेटर ऑन इन कमिंग सेशंस वी आर गोइंग टू यूज सम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स, लाइक जो भी हमने कल डिस्कस किए, like your VGG model we can just use, or kind of model we can use to implement this cat and dog classifier. Resonate है, then after that Inception है. So likewise many models are available. These are standard models are there. So before that, obviously we have to use our own models. So own models means we are going to decide how many convolutional and max pooling layers will be there, and then after that how many kernels we are going to use in each and every convolutional layer. So that step we have to discuss over here. So before that, let's discuss about the data set. Let's discuss about the data set. So whatever the data set we are going to use over here, that data set we are going to use for real images. So let me just tell you where is that data set we are going to use from. That is from Kaggle. We are going to use the data set from Kaggle. So ये जो डेटा सेट है उसको पहले देखते हैं कि दिस डेटा हाउ इट लुक्स लाइक. सो लेट मी जस्ट गो टू द Kaggle. Kaggle is going to help you a lot after this. मतलब ये जो भी हम CNN वगैरह implement करने वाले हैं, या तो जो भी RNN implement करने वाले हैं, वहाँ पे Kaggle is going to help you a lot. बिकॉज ऑलरेडी डेटा सेट वहां पे होते हैं, तो हम उसको वहां पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं. सो यू डोंट नीड टू डाउनलोड डेटा सेट इन योर लोकल मशीन्स. वी आर गोइंग टू यूज Kaggle कर्नल्स. कर्नल्स मतलब वहां पे नोटबुक. एंड आई थिंक हमने कोलैब आज तक यूज किया है, कोलैब, गूगल का कोलैब. सो कोलैब वी आर नॉट गोइंग टू यूज टुडे, बिकॉज कोलैब अगर करना है तो आपको जो डेटा है Kaggle से कोलैब पे मूव करना पड़ेगा. सो दैट वी डोंट वांट. Kaggle's kernels are also like best one. So I will just introduce you about Kaggle kernels also today. It is taking some time to, yes.
Now we have to search for one data set. So वो जो डेटा सेट है, यस आई थिंक ये सर्च लिस्ट में है मेरे ऑलरेडी, डॉग्स वर्सेस कैट डेटा सेट। अगर आपको सर्च करना तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली सर्च ओवर हियर आल्सो, डॉग्स वर्सेस कैट। Okay, so let me just go to the dogs versus cat data set. That is the standard data set that is into Kaggle itself. So create an algorithm to distinguish dogs from cats. Okay. तो ये जो डेटा है आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट योर इमेज इज। सो इसमें कैट एंड डॉग्स व्हाट एवर वी कैन हैव ओवर हियर। ओके, सो दिस इज वन काइंड ऑफ कंपटीशन आई मस्ट से। सो एक कंपटीशन है, ये आप देख सकते हैं, प्लेग्राउंड प्रेडिक्शन कंपटीशन। एंड आई थिंक ये क्लोज हुआ है शायद, सो इसलिए हम यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सके। इट इज 7 years ago, so it is too old and only 213 teams were there. So obviously we cannot participate into this competition, but we can just use this data. We can just use this data for our uh, मॉडल बिल्डिंग पर्पज, या तो हमें जो भी CNN मॉडल बना उसके लिए। यू कैन जस्ट सिंपली सी ओवर हियर, ये जो डेटा सेट है दैट इज 814 मेगाबाइट्स का डेटा सेट है। 814 मेगाबाइट्स बहुत बड़ा डेटा सेट है। अगर आपको डाउनलोड करके आपके लोकल मशीन में अगर इसको करना है तो ऑब्वियसली डाउनलोडिंग के लिए आपको यू नीड टू हैव लाइक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, एज वेल एज आपके मशीन में अगर CNN नेटवर्क अगर ट्रेन करना है तो आपके पास GPU भी होना चाहिए। सो दोनों ऑप्शंस नहीं आपके पास, ऐसे कंसीडर करके हम यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट कर देंगे इनटू कैगल इटसेल्फ। जैसे हम कोलैब पे करते थे वैसे कैगल में करेंगे। यू कैन जस्ट सी in this data we are having two files like test one dot zip and train dot zip। so इसका मतलब यहाँ पे ट्रेन एंड टेस्ट दोनों डेटा सेट आपका है, ये जिप फाइल्स है, दीज आर जिप फाइल्स। नाउ बेसिकली what is mean by GIF file is, so ये जो है ना, ये सारे जो images है वो GIF folder में उन्होंने रखे, and these folders are just been there at a Kaggle side। तो ये आप यूज करोगे तो पहले तो आपको इसको अनजिप करना पड़ेगा, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ वी हैव टू डू, सो दैट इज अनदर पार्ट। तो पहले तो ये आपका डेटा सेट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस डेटा सेट में ओनली 3 फाइल्स आर देयर। एंड ये जो 3 फाइल्स है ये मतलब आपके सबमिशन का फाइल का फॉर्मेट दिया है उन्होंने। सो दिस इज नॉट नीडेड बिकॉज ये कॉम्पिटिशन खत्म हुआ है। टेस्ट डॉट जिप एंड ट्रेन डॉट जिप, सो ये जो दो फोल्डर्स है, ये जो दो फाइल्स है, इसके अंदर आपके सारे इमेजेस है। नाउ अभी आपको इस जो डेटा सेट को यूज करना है तो यू कैन जस्ट सिंपली गो इनटू नोटबुक्स एंड क्रिएट योर न्यू नोटबुक। अगर आप यहाँ पे जाके नोटबुक क्रिएट करते हैं ना तो ये जो डॉग्स वर्सेस कैट डेटा सेट है वो आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा, आपको इंपोर्ट वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने बाय डिफॉल्ट ये नोटबुक्स में गए, नोटबुक क्रिएट करो, वहां पे कोई डेटा सेट आपको यूज करना है तो वो प्रोसेस में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये तो डेटा सेट मैंने मुझे सिर्फ आपको बताना था कि हाउ दिस डेटा सेट लुक्स लाइक। तो वेन एवर यू आर वर्किंग विथ कैगल, अगर आपको कैगल पे एक कोड रन करना है या तो इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कोलैब में हम collab.google.com पे जाते हैं एंड वी जस्ट क्रिएट अ न्यू नोटबुक, वैसे हम यहाँ पे जाके भी नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं इन जनरल। एंड अगर आपको डॉग्स वर्सेस कैट ये डायरेक्टली एक्सेसिबल चाहिए तो यहाँ पे जाके न्यू नोटबुक, लेट मी टेल यू द जनरल वे। सो ये जो कैगल का जो भी डैशबोर्ड है, यहाँ पे मैं नोटबुक्स में जा रहा हूँ, यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं नोटबुक्स। एंड इफ यू वांट टू जस्ट सी माय, ये जो आपका वर्क है यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो यू कैन जस्ट सी योर नोटबुक्स, योर ओन नोटबुक्स ओवर हियर। सो ये जो नोटबुक्स है यू कैन क्रिएट योर न्यू नोटबुक। सो लेट मी क्लिक ओवर हियर, सो इट विल क्रिएट अ न्यू नोटबुक फॉर अस। सो ये जो नोटबुक मतलब जो कोलैब का जो नोटबुक होता है वैसे यहाँ पे कैगल का नोटबुक है, यहाँ पे भी GPU होता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर आल्सो। It is taking some time to initializing। So यहाँ पे डेटा इंपोर्ट करेंगे, देखेंगे उस डेटा में what kind of images we are having। Okay, so this notebook is been initialized।
ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते, दिस इज द नोटबुक, यू कैन जस्ट क्रिएट अ नोटबुक ओवर हियर, ऐसा ऐसा. सो इट इज द नोटबुक ओवर हियर एंड यू कैन जस्ट सी द डैशबोर्ड टू द राइट साइड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट है, आउटपुट है. सो ये जो इनपुट एंड आउटपुट है ना, दिस इज द डायरेक्ट स्ट्रक्चर एट द क्लाउड साइड. देन आफ्टर दैट लैंग्वेज कौन सा यूज करना है, यू कैन सेट ओवर हियर पाइथन यूज करना है, आर यूज करना है. आई थिंक ये हमने कोलैब में भी किया था. एनवायरमेंट, तो preferences, तो original environment I am going to use, as well as you can just save your like uh, images also over here. So environment के images भी आप यहाँ पे रख सकते हैं. So I am just going to use the original one. Accelerator, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जीपीयू यूज करना है, नन मतलब सीपीयू, जीपीयू यूज करना है या तो टीपीयू. टीपीयू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ये दिस इज द फास्टेस्ट वन, these are the fastest ones. So we are not going to use TPU because इसके लिए थोड़े से अलग सेटिंग होते हैं. So we are simply going to use GPUs. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं turn on GPU will reduce number of CPUs available. Okay, and availability is limited to 42 hours this week. So इसका मतलब ये आपका लिमिटेड होता है. So हर वीक वो आपको 42 hours देंगे. Okay, minimum data is provided. You have 42 hours remaining. Okay, so let me turn it on because मेरे 42 hours में use कर सकता हूँ मेरा GPU. And then after that, here you can just see internet. अभी इंटरनेट मतलब ये क्या चीज है, देखो. फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग कैगल नोटबुक, एंड इस कैगल नोटबुक पे मतलब क्लाउड पे आपको किसी गूगल ड्राइव से कुछ डेटा डाउनलोड करना है इस कैगल के नोटबुक के यहाँ पे. तो ऑब्वियसली एट कैगल साइड यू नीड अ इंटरनेट. तो यहाँ पे उस टाइम पे आपको ये ऑन रखना है. नाउ फॉर नाउ आई थिंक इट इज नॉट नीडेड, सो मैं ऑफ करता हूँ. सो इंटरनेट इज डिसेबल्ड. लेकिन अगर आपको कोई डेटा सेट यहाँ पे डाउनलोड करना है, देखो दिस इज एट अ कैगल्स क्लाउड साइड. तो इसका मतलब अभी क्या हुआ है, वी आर सीटेड इन पुणे. सो यहाँ पे हम है. सो वी आर सीटेड इन पुणे. सो वी आर हियर एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सेस, ये जो आपका कैगल का क्लाउड है, वहां पे आपका एक इंस्टेंस तैयार हुआ है, मतलब वर्चुअल कंप्यूटर आपका एक तैयार हुआ है. तो ये जो कैगल का नोटबुक है, वो कैगल का नोटबुक यहाँ पे अभी फिलहाल, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सेस दैट कैगल नोटबुक थ्रू और इंटरनेट. सो ये थ्रू इंटरनेट हम एक्सेस कर रहे हैं. सो ये जो कैगल का नोटबुक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू एक्सेस सम रिसोर्सेस फ्रॉम अदर इंटरनेट साइट्स लाइक, आपको गूगल से मतलब ये गूगल ड्राइव से कुछ तो डेटा सेट आपको एक्सेस करना है जो गूगल ड्राइव पे है डॉट जिप में. तो ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होता है. सो रहता है ऑब्वियसली. तो ये जो वर्चुअल आपका इंस्टेंस है जो आपको नोटबुक दिख रहा है, वो नोटबुक ये जो डॉट जी फाइल है वो डाउनलोड करता है एट देयर साइड. मतलब ये जब डाउनलोड करेगा वो कैगल नोटबुक, मतलब ये कैगल क्लाउड पे ही रहेगा. ये गूगल क्लाउड है लेट्स से, एंड ये दिस इज आवर लोकल मशीन. तो हमने क्या किया, वी हैव जस्ट क्रिएटेड इंस्टेंस ओवर हियर. अभी इस कैगल नोटबुक में वी वांट टू डाउनलोड द डेटा सेट फ्रॉम गूगल ड्राइव. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक व्हाट वी कैन से एक लिनक्स बेसिकली ये यूज करते हैं बैकएंड में. तो जैसे डब्लू गेट से हम डाउनलोड कर सकते हैं कुछ भी, तो ये कमांड यूज करके ये जो फाइल है ना, ये फाइल गूगल क्लाउड से हम ट्रांसफर करेंगे टू द कैगल क्लाउड सो दैट इट विल बी एक्सेसिबल टू आवर नोटबुक. सो बेसिकली वी आर डाउनलोडिंग डेटा, मतलब यहाँ पे जो इंटरनेट यूज होगा ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरनेट चाहिए. तो ये जो ट्रांसफर करने के लिए जो इंटरनेट लगता है वो अभी मैंने वहां पे ऑफ किया है. हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो ये वाला इंटरनेट है, लेकिन इस साइड पे भी इंटरनेट लगेगा अगर ऐसा कोई डेटा हमें ट्रांसफर करना है तो. ठीक है. यस. नाही नाही नाही, दॅट विल नॉट बी ऍट आवर पीसी. येस येस. बघ ना आता 814, हा 814 MB चा डेटा आहे. आता बेसिकली आपल्याला याच्यावरती काम करायचं म्हणजे काय करावं लागेल, समजा कॅगल कर्नल वरती काम करतोय पण जसं गुगल ड्राईव्ह म्हणजे कोलॅब वरती केलं त्यावेळेस आपण काय केलं की डेटा कोलॅब वरती अपलोड पण केला होता, मधले जे इमेजेस वगैरे होते आपले काय वेळेस ते. पण आता इथं तसं करायचीच गरज नाही. आपण काय करणार, इथनं फक्त कमांड पाठवणार या कॅगल नोटबुकला. नाउ दिस कॅगल नोटबुक व्हॉट इट विल डू, इट विल जस्ट गिव्ह दॅट कमांड टू, जर समजा गुगल ड्राईव्ह वरती जर डेटा असेल तर तिथून तो डायरेक्ट डाउनलोड करेल.
Kaggle cloud वरती. So these are basically two different clouds. So obviously here internet connection is required. सो एवढा मोठा जो डेटा आहे तो पहिलं जर हा जर वे नसता आपल्याकडे, इफ दॅट वे इज नॉट हिअर, सो आपल्याला काय करायला लागतं, इथून हा डाउनलोड करा आपल्या लोकल मशीन मध्ये आणि इथून परत इकडे अपलोड करा. सो that we don't need to do now because that transfer is possible. Okay, so that is why using this transfer we are going to do that. Okay, so 814 MBs तुम्हाला हे करायची गरज नाही. ठीक आहे. सो लेट्स गो टू कॅगल कर्नल अगेन. let me go over here. So ये internet off है. let me add the data over here. So you can just see over here, यहाँ पे एक option है add data. So ये जो add data है, ये Kaggle से हम कोई भी data यहाँ पे add कर सकते हैं. So let me just do Kaggle से कौन सा data हमें add करना है. तो let me search for the data. So data का जो नाम है that is dogs versus cat data set. डॉग्स वर्सेस कैट. सो डॉग्स एंड कैट्स के काफी सारे डेटा सेट है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते, दिस इज नॉट द डेटा वी आर लुकिंग फॉर. ये 434 MBs का डेटा है. सो दैट इज नॉट द डेटा वी आर लुकिंग फॉर. आई थिंक दिस इज द डेटा सेट वी आर लुकिंग फॉर, दैट इज 816 MBs. तो ये डेटा हमें ऐड करना है. सो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ. जैसे ही ऐड पे क्लिक करूंगा ये डेटा सेट हमें अवेलेबल हो जाएगा हमारे ये डायरेक्टरीज पे. सो बेसिकली वो दो डायरेक्टरी प्रोवाइड, डायरेक्टरी मतलब जैसे फोल्डर होते हैं हमारे सिस्टम में. सो इनपुट डायरेक्टरी है. सो अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ. देयर इज नथिंग इनसाइड इनपुट. एंड आउटपुट में आप देख सकते हैं, आउटपुट में कैगल वर्किंग, ये आपका पाथ अवेलेबल है आउटपुट में, कैगल वर्किंग. सो ये कैगल वर्किंग के अंदर वी कैन जस्ट क्रिएट आवर मॉडल्स एंड वी कैन जस्ट सेव आवर मॉडल्स और वी कैन जस्ट सेव आवर रिजल्ट्स ओवर हियर. अभी ये जो कैगल स्लैश वर्किंग, ये जो डायरेक्टरी है दैट इज एडिटेबल. एडिटेबल मतलब इसमें हम हमारा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं. ये जो इनपुट डायरेक्टरी है ना, इनपुट डायरेक्टरी यहाँ पे फोल्डर, ये इट इज नॉट राइटेबल डायरेक्टरी. इनपुट डायरेक्टरी इज नॉट राइटेबल, ये सिर्फ रीडेबल है. सो इसलिए जब हम ऐड डेटा बोलते हैं ना, वो ऐड डेटा इनपुट डायरेक्टरी में जाएगा. आई एम जस्ट क्लिकिंग ओवर हियर बट इट इज नॉट ओपनिंग बिकॉज वहां पे कुछ भी नहीं है इनपुट में. आई कैन जस्ट डायरेक्टली शो दैट ओवर हियर थ्रू कमांड लाइन. आउटपुट में वी आर हैविंग दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैगल एंड वर्किंग, लेकिन इसके अंदर अभी तक तो कुछ नहीं है. सो वी कैन जस्ट प्लेस, अगर आपको टेम्पररी फाइल स्टोर करने हैं तो ये कैगल स्लैश वर्किंग में, मतलब आउटपुट स्लैश कैगल स्लैश वर्किंग में आप आपके टेम्पररी फाइल स्टोर कर सकते हो. आपको डेटा कहाँ पे मिलेगा, इनपुट में मिलेगा. ठीक है. सो हाउ टू एक्सेस दिस डायरेक्टरीज, फर्स्ट लेट मी टेल यू. अभी तक मैंने डेटा ऐड नहीं किया, मैंने सिर्फ सर्च करके देखा. नाउ दिस इज द डिफॉल्ट थिंग यू कैन जस्ट सी ओवर हियर. ये बोल रहा है कि दिस इज पाइथन 3 एनवायरनमेंट कम्स विथ, ओके ओके ठीक है. numpy उन्होंने इंपोर्ट किया, pandas उन्होंने इंपोर्ट किया. एंड इनपुट डेटा फाइल्स आर अवेलेबल इन द रीड ओनली फॉर्मेट. सो रीड ओनली फॉर्मेट कहाँ पे है, डॉट डॉट स्लैश इनपुट. अभी ये डॉट डॉट स्लैश मतलब क्या, पैरेंट डायरेक्टरी में एक इनपुट डायरेक्टरी है, मतलब वापस जाओ. पैरेंट डायरेक्टरी मतलब वापस जाओ एंड उसके अंदर एक इनपुट नाम का एक डायरेक्टरी है, तो उसके अंदर इनपुट डेटा होगा. सो वही मैंने यहाँ पे बताया कि इस इनपुट के अंदर आपका डेटा आने वाला है. So for example, running this by clicking run processing will list all the files under the input directory. तो ये बोल रहा है कि जो इनपुट डायरेक्टरी में जो सारे फाइल्स है वो आपको दिखाई देंगे अगर ये कोड आप रन करते हो तो. तो देखो ये जो है ना, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, क्लाउड साइड का जो हमारा इंस्टेंस है वो इंस्टेंस को अभी हम रिमोटली हैंडल कर रहे हैं, रिमोटली. सो यहाँ से हम कमांड भेज देंगे, वहां पे रन होगा, हमें यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट दिखेगा. सो टू हैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड लाइक प्रॉपर्टीज और या तो जो भी सिस्टम कॉल्स है, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट ओएस करना पड़ता है. एंड इंपोर्ट ओएस में काफी सारे कमांड्स होते हैं, लिस्ट डायरेक्टरी होता है, चेंज डायरेक्टरी होता है. सो एनीथिंग वी कैन जस्ट डू. सो इसलिए ये ओएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस आउट. तो देखो ये एग्जीक्यूट हो गया लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया. व्हाई दिस इज सो, बिकॉज कैगल इनपुट में कुछ भी नहीं है. इनपुट में कुछ भी नहीं, बिकॉज देयर इज नथिंग ओवर हियर. इसको मैं और भी अच्छे तरीके से बता सकता हूँ. लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो कमांड लाइन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, cmd. अभी ये जो cmd है, ये देखो अभी अगर मैं यहाँ पे कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, रिमूव वगैरह ऐसा कुछ भी, तो वो कहा कौन से फाइल्स रिमूव करेगा,
सी में यूजर्स में विवेक। अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट कमांड यूज किया, अभी यहाँ पे लिस्ट नहीं होता, यहाँ पे dir होता है, dir, तो it is just going to list down all the files available into users vivek directory. So let me just list down that. yes, आप देख सकते हैं ये जो भी कुछ है ना, ये आपके डायरेक्टरी ऑफ सी यूजर्स विवेक, तो ये इस कमांड से है। सो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्यों बताया उसने, बिकॉज वी आर करंटली एट दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी। वैसे अभी ये जो मॉडल, ये जो इंस्टेंस है, ये अभी कहाँ पे है, लेट मी शो यू। सो दैट इज व्हाट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अभी हम कहाँ पे, कैगल में वर्किंग में। सो वी आर राइट नाउ वी आर एट कैगल वर्किंग, ठीक है। लेकिन अभी हमें कहाँ पे जाना है, इनपुट में जाना है। सो आप यहाँ पे सिंपली लेट मी जस्ट शो यू व्हाट इज द स्ट्रक्चर इज। दिस इज व्हाट योर रूट इज, मतलब इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो इसके अंदर हमारे पास एक कैगल, सॉरी कैगल, कैगल नाम का फोल्डर, इसके अंदर दो डायरेक्टरीज है। सो दैट इज इनपुट, लेट मी जस्ट, कैगल नाम का डायरेक्टरी है। सो रूट में कैगल, सो कैगल के अंदर वी आर हैविंग टू डायरेक्टरीज लाइक इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट के अंदर आएगा आपका डेटा सेट, क्योंकि ये ओनली रीड होता है, रीड ओनली होता है, ये सिर्फ रीड ओनली, उसको आप चेंज नहीं कर सकते उस डेटा सेट को। एंड ये आउटपुट है, इसमें और एक डायरेक्टरी होगा, दैट इज, इसमें और एक डायरेक्टरी दैट इज वर्किंग, द नेम ऑफ दैट डायरेक्टरी इज वर्किंग। एंड इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर यू आर जस्ट क्रिएट अ फाइल, योर ओन फाइल, यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन फाइल्स ओवर हियर, a.txt, b.txt, ऐसे फाइल्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। So this is what your directory structure is. This is what your directory structure is. Now, अभी आपने ऊपर देखा होगा कि ये जो OS हमने इंपोर्ट किया था, तो वहां पे उन्होंने ये जो OS इंपोर्ट किया था, यहाँ पे यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, ये वाला चीज। तो ये डॉट डॉट स्लैश इनपुट स्लैश, ये क्या करता है, लेट मी शो यू। अभी हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पे है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आई थिंक इट इज इन वर्किंग। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, कैगल वर्किंग में है। अभी हम यहाँ पे हैं इन कैगल वर्किंग, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है। सो वी आर ओवर हियर, वर्किंग डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। नाउ ये व्हाट वी आर सेइंग नाउ, गो टू पैरेंट। पैरेंट मतलब यहाँ पे जाओ, ये इसका पैरेंट है, वर्किंग का पैरेंट है ये। सो वर्किंग के पैरेंट में जाओ एंड पैरेंट के इनपुट में जाओ। सो पैरेंट के फिर से इनपुट में गए, मतलब हम यहाँ पे जा रहे हैं। सो अभी तो फिलहाल हमें यहाँ पे कोई भी डेटा सेट नहीं, इसलिए उसने एम्प्टी दिया। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट थ्रू कमांड लाइन। सो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट, अभी फिलहाल लिस्ट क्या करेंगे, कैगल वर्किंग, कैगल वर्किंग के अंदर भी कुछ भी नहीं है। सो कुछ भी नहीं मतलब ये जो भी हमारा करंट फाइल छोड़ के वहां पे कुछ भी नहीं। सो ये करंट फाइल मतलब जो भी हमने यहाँ पे किया है। लेट मी जस्ट चेंज द नेम ऑफ दिस फाइल, लेट मी मेक इट एज dsml4 डॉग एंड कैट, डॉग एंड कैट, ठीक है। सो ये जो फाइल है वो राइटेबल फाइल होता है, इसलिए उसको कैगल वर्किंग में डाला है, बाकी कुछ भी नहीं यहाँ पे। सो यू कैन सिंपली सी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, वापस जाना है इन दिस डायरेक्टरी एंड उसके इनपुट में जाना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ट्राई टू लिस्ट ls parent। सो ls parent मतलब ये जो वर्किंग का पैरेंट है, वर्किंग का पैरेंट कौन है, कैगल है। तो ये वर्किंग का पैरेंट बेसिकली क्या है, कैगल। ओके, लेट मी जस्ट शो यू व्हाट इज दिस पैरेंट इज। सो देखो वर्किंग का पैरेंट क्या है, ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जहां पे आपको इनपुट मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगा, वर्किंग मिलेगा। ओके, एंड इफ आई जस्ट गो टू इट्स पैरेंट देन सी पैरेंट, ओ यहाँ पे तो पूरा आपका ओएस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे तो पूरा आपका ओएस स्ट्रक्चर है। सो इसमें सिर्फ हम ये कैगल यूज कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ हम ये कैगल यूज कर रहे हैं, एज वेल एज
ओके, सो ये कैगल के अंदर तो कैगल के अंदर वी आर जस्ट गोइंग टू हैव, कैगल का स्पेलिंग गलत आया क्या? ओके ओके, ये करने के बाद कैगल लिखना पड़ेगा। सो यस, सो उसमें अंदर कैगल, तो कैगल में इनपुट वर्किंग मतलब अभी हम कैगल के अंदर ही है। सो बेसिकली यू कैन जस्ट सी, ये जो है ना कैगल वर्किंग में है, अभी हम कैगल के अंदर वर्किंग। सो बेसिकली ये इनपुट जो है ना, ये इनपुट यहाँ पे आपको मिलेगा, एंड इन जनरल जो आउटपुट होता है ये वो आपको वर्किंग के अंदर मिलेगा। सो वर्किंग के अंदर आपको आउटपुट डायरेक्टरी मिलेगा। सो लेट मी जस्ट शो यू, पैरेंट में अभी लेट मी गो टू वर्किंग, इनपुट लाइब्रेरी वर्किंग, लेट मी जस्ट सी, ये थोड़ा सा शायद थोड़ा सा अलग, लेट मी जस्ट राइट डाउन। पहले तो ये रूट है, रूट के अंदर कैगल है, कैगल के अंदर ये तीन लाइब्रेरीज है, विच आर दे इनपुट लाइब्रेरी एंड वर्किंग, इनपुट लाइब्रेरी एंड वर्किंग। अभी ये तीनों का मतलब क्या है, लेट मी टेल यू। इनपुट में आपका डेटा सेट रहेगा, इसमें डेटा सेट रहेगा। लाइब्रेरीज में आपके पैकेजेस रहेंगे जो आप इंस्टॉल करने वाले हो, अगर आप बाद में इंस्टॉल करते हो तो ना। वर्किंग में आपके राइटेबल फाइल्स होंगे, राइटेबल फाइल्स मतलब टेम्प फाइल्स या तो आपका नोटबुक वगैरह, ठीक है। सो ये रहेंगे। देन आफ्टर दैट ये जो वर्किंग है इसके अंदर क्या है, लेट मी टेल यू। सो इसके अंदर अभी देखेंगे हम क्या है, एलएस वर्किंग के अंदर अभी देखो सिर्फ नोटबुक है अभी फिलहाल, तो वर्किंग के अंदर सिर्फ हमारा अभी नोटबुक है। सो दैट इज नोटबुक, नोटबुक। जब हम डेटा सेट लेंगे वो डेटा सेट कहाँ पे जाएगा, इनपुट में जाएगा। सो ये डेटा सेट जब हम डाउनलोड करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा वो कैट वर्सेस डॉग डेटा सेट। तो यू कैन सिंपली सी दैट। तो let me just go and import that data set, ठीक है। सो मैं डेटा सेट अभी ऐड करता हूँ। ऐड करने के लिए लेट मी सर्च फॉर दैट, दैट इज डॉग्स वर्सेस कैट। So this is what the data set that we are going to use. So let me add this data set. तो इज रेडी टू यूज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐड हो गया। तो ये कहाँ पे ऐड हुआ है, इनपुट के अंदर ऐड हुआ है 817। सो यस, वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इंटरनेट फॉर दैट पर्पस, क्योंकि ये कैगल के साइड पे, कैगल के जो भी हमारा नोटबुक जहाँ पे वहां पे ये। सो बेसिकली इट इज नॉट नीडेड। सो इसके अंदर वी आर हैविंग टेस्ट एंड ट्रेन like files, test and train files, you can just see these are the test files. Let me just go back and this is what your train के अंदर train and train के files you can just see like this, train के files you can just see। देखो ये कैसे files है, cat डॉट 10016 डॉट जेपीजी। तो ये जो है ना ये आपका लाइक फाइल नेम है। सो यू कैन जस्ट इफ यू जस्ट सी दिस फाइल, आपको दिखेगा कि इसमें कैट है, डॉग है, जो भी कुछ है ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो देखो ये कौन सा कैट है, दिस इज द रियलिस्टिक प्रॉब्लम, राइट, रियलिस्टिक फाइल, राइट। यहाँ पे और भी मैं दिखा तो ये देखो, कैन वी सी दैट दिस इज लाइक अ रियल। ये कैसे बड़ा करें इसको, ठीक है। यू कैन जस्ट सिंपली दिस इज द ओनली इमेज यू कैन सी। एंड उसके बाद में ये इमेज देखो, रैंडमली वी कैन जस्ट सी द इमेज। सो दीज आर रियल इमेजेस दैट इज बीन कैप्चर बाय योर कैमराज, दीज आर रियल इमेजेस कैप्चर्ड बाय कैमराज, ठीक है। हर एक का डायमेंशन चेंज हो रहा है, दैट आल्सो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व। देखो ये कैसे, पिछला वाला कैसे था, ये कैसे इमेज। सो दीज ऑल आर कैट इमेजेस। एंड आप देख सकते हैं अभी ये जो है ना ये रियल इमेजेस है। इस इमेज में क्या स्टोर्ड है, वो लेबलिंग उसके फाइल नेम में। तो इस फाइल में कैट है वो इसके नाम में ही लिखा है। सो जब आपका डेटा फ्रेम बनेगा तब आपको इस फाइल को रीड करना है, उसका लेबल उसके नाम में ही आपको ढूंढना है। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। सो आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अभी लेट मी जस्ट क्लोज दैट ऑल।
ओके, सो दिस इज व्हाट योर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ओवर देयर। मतलब इनपुट में अभी आप देख सकते हैं डॉग्स वर्सेस कैट नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर टेस्ट एंड ट्रेंड फोल्डर होगा, ट्रेंड के अंदर फिर से ट्रेंड फोल्डर एंड उसके अंदर आपके फाइल्स होंगे। सो लेट मी जस्ट सी दैट कि लेट मी जस्ट लिस्ट ls पैरेंट डायरेक्टरी में इनपुट है। सो लेट मी गो इनटू अभी इनपुट के अंदर भी जाता हूं मैं। सो लेट मी गो इनटू इनपुट। देखो डॉग्स वर्सेस कैट है, डॉग्स वर्सेस कैट ये वाला, उसके अंदर टेस्ट एंड ट्रेंड नाम की डायरेक्टरी हो गई। सो इसके अंदर ट्रेंड नाम का देखते हैं आप, ट्रेंड नाम का डायरेक्टरी है। देखो ls नहीं 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 क्या, इनपुट के अंदर कैट्स वर्सेस डॉग्स है ना, सो इसके अंदर है। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस आउट। सो इनपुट के अंदर कैट्स वर्सेस डॉग एंड इसके अंदर आपको ट्रेन एंड टेस्ट मिलेगा। सो इसके अंदर ट्रेन, इस ट्रेन के अंदर फिर से ट्रेन एंड दीज आर ऑल द फाइल्स, दीज आर ऑल द फाइल्स। ठीक है, सो आप देख सकते हैं द सीक्वेंसेस इनपुट के अंदर डॉग्स वर्सेस कैट, उसके अंदर ट्रेन, उसके अंदर ट्रेन, उसके अंदर ये सारे इमेजेस। सो दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ योर दिस डेटा सेट ओवर हियर। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली आपका जो डेटा है वो कहाँ पे एंड कैसे स्टोर्ड है। ठीक है, सो लेट मी यूज दिस फॉर आवर मॉडलिंग पर्पस। सो ये क्लोज करता हूँ मैं। ठीक है, सो इसका मतलब आपको ये जो इनपुट है इसके अंदर कैट्स वर्सेस डॉग मिला, एक फोल्डर कैट्स वर्सेस डॉग, इसके अंदर ट्रेन नाम का फोल्डर है, टेस्ट नाम का भी फोल्डर है, ट्रेन के अंदर फिर से ट्रेन नाम का फोल्डर एंड बाद में इमेजेस। सो दिस पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो लेट्स यूज दिस फाइल्स, जो भी इमेजेस उसको हम रीड करेंगे एंड विल प्रिपेयर दिस इमेजेस रेडी फॉर आवर ट्रेनिंग पर्पस। ठीक है, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज दैट, द प्रॉब्लम इज दैट अभी आपके पास एक इमेज है, इस इमेज में ये जो कैट है, ये अभी देखो दिस इज द कैट इज, तो ये जो कैट है ये ऐसे बैठे है। So on this image we are going to train our data, on this image we are going to train our data, but अगर आपके टेस्ट में अगर ऐसे इमेजेस है where your cat is looking at this side, ये आपका कैट है and that is being seated like this, सिर्फ सिर्फ यहाँ पे भी कैट है, यहाँ पे भी कैट है, बट उनका डायरेक्शन चेंज हो गया देखने का। सो ऑब्वियसली ये भी डिटेक्ट होना चाहिए, इट ऑल्सो टू बी डिटेक्टेड। या तो कुछ इमेज में ऐसे हो सकता है कि ये जो कैट है ये बीच में कहाँ पे तो बेटा है ऐसे, कैट बैठे, यस। सो लाइकवाइज कहाँ पे भी कैट हो, कैसे भी कैट हो, इट शुड बी डिटेक्टेड बाय योर डेटा, बाय योर मॉडल। तो इसका मतलब जितना वेरिएबल डेटा आप, जितना वेरिएंस डेटा आप देगो एज इनपुट फॉर फिटिंग पर्पस, उतना बढ़िया आपका मॉडल बनेगा। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ हम ऐसा ही डेटा दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिजिट क्लासिफिकेशन में कैसे होता था कि अगर आप 7 को ट्रेन कर रहे हैं तो 7 को ट्रेन करने के लिए सिंपली यू आर यूजिंग दिस, लेकिन अगर किसी ने 7 यहाँ पे लिखा, इट इज नॉट एबल टू डिटेक्ट, या तो किसी ने अगर 7 यहाँ पे लिखा, इट इज नॉट एबल टू डिटेक्ट। So we don't want such kind of problems with respect to cat versus dog classifier, and that is why new concept comes into picture, that is data augmentation. That is data augmentation. Now let me tell you what is meant by data augmentation. Data augmentation is the process. For example, ये यहाँ पे let me take one yes. So यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कोई तो ऐसा random image लेता हूँ. So this is kind of one random image. दिस इज काइंड ऑफ वन रैंडम इमेज। तो ये जो इमेज है, इस इमेज को यूज करके वी कैन जस्ट क्रिएट सम वेरिएशंस ऑफ इमेजेस। मतलब इससे
ज्यादा वेरिएशंस कर सकते हैं। कुछ एक 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 इमेज में इसको क्या करेंगे, हम जूम इन करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसका ये जो बॉक्स है वो भी बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज जूम्ड इन इमेज। एक एक दूसरे इमेज में हम इसको जूम आउट करेंगे तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी लाइक दिस। तीसरी इमेज में इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे मतलब ये यहाँ पे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, सो ये थोड़ा सा टिल्टेड है। सो ऑब्वियसली ये जो तीनों इमेजेस दैट आर ऑफ सेम काइंड, अगर ये कैट है तो ये तीनों भी कैट ही है, दिस इज नॉट कैट बेसिकली, बट यू कैन जस्ट सी दैट मीन्स व्हाट कि ये तीनों सेम ऑब्जेक्ट्स है। एंड दिस काइंड ऑफ वेरिएशंस वी आर गोइंग टू मेक इनटू योर ओरिजिनल इमेजेस। तो एक इमेज से आप काफी सारे बाकी के इमेजेस ले सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। एंड जो भी ये क्रिएटेड इमेजेस है दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर ट्रेनिंग पर्पस। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि अगर आपको ये सारे इमेजेस अगर ट्रेन करने हैं तो कैट को पहले ऐसे, बट कैट के नजदीक जाओ फोटो ले लो, कैट के दूर जाओ फोटो ले लो, कैट को मतलब ऐसे रखो सो उसको सुलाओ और उसके बाद में उसका पिक्चर ले लो, दैट इज नॉट नीडेड। दैट वी कैन जस्ट डू इट बाय इमेज प्रोसेसिंग। सो यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग कम्स इनटू पिक्चर। तो एक ही इमेज से वी कैन क्रिएट मल्टीपल इमेजेस एंड वी कैन जस्ट प्रोवाइड दिस इमेजेस फॉर ट्रेनिंग पर्पस, सो दैट ट्रेनिंग विल अंडरस्टैंड दिस इज आल्सो कैट, दिस इज आल्सो कैट, दिस इज आल्सो कैट। अदरवाइज सिर्फ एक ही इमेज मैंने दिया फॉर ट्रेनिंग पर्पस, सर सिर्फ ऐसे इमेजेस को ही हमारा मॉडल कैट बोलेगा, इसको कैट नहीं बोलेगा वो, बिकॉज उसको पता ही नहीं कि ये जूम्ड आउट इमेज भी कैट है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ डेटा ऑगमेंटेशन. Now, obviously, it is a part of image processing. So let me tell you how we can create such images. So ये जो operations, जो different operations हम करते हैं original image पे, तो इस original image पे we can just apply functions like zoom करो, मतलब zoom पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। सो ये जूमिंग ऑपरेशन होता है, या तो इसको बोलते हैं शेयर ऑपरेशन, शेयर। बाद में स्केलिंग ऑपरेशन भी होता है, स्केलिंग। देन आफ्टर दैट काफी ऐसे ऑपरेशन है, लेट मी शो यू कि ऐसे ऑपरेशन करने के बाद आपको मल्टीपल इमेजेस मिल जाएंगे, आपको एक इमेज से मल्टीपल इमेजेस मिल जाएंगे। सो लेट मी जस्ट शो यू that how data augmentation works. So just go to this data augmentation. Let me just show you data augmentations. देखो अभी ये कैट है, सो ये ओरिजिनल कैट है, एक ओरिजिनल कैट है। तो इसको क्या किया हमने, टिल्ड किया है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल कैट है, थोड़ा सा टिल्ड किया है। अभी इसका मिरर इमेज यहाँ पे लिया है, उसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप बोलते हैं। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर, जूम है, शेयर है, फ्लिप है। फ्लिप मतलब हॉरिजॉन्टल हम फ्लिप कर सकते हैं या तो वर्टिकल कर सकते हैं। सो हॉरिजॉन्टल फ्लिप मतलब मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल फ्लिप। वर्टिकल फ्लिप मतलब ये उल्टा होगा। सो वर्टिकल फ्लिप मतलब ये नीचे जाएगा, ये पाय पैर उसके ऊपर आएगा। सो वर्टिकल फ्लिप इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। तो ये देख सकते हैं आप। सो उसके बाद में उसने क्रॉप किया, सो सिर्फ उसका मुंह लिया है यहाँ पे, बाद में यहाँ पे भी देखो। सो दीज आर डिफरेंट कैट इमेजेस। एक ही कैट है, एक ही इमेज है, लेकिन उसको यूज करके मैंने यहाँ पे 6 इमेजेस बनाए। सो दैट इज व्हाट डेटा ऑगमेंटेशन इज कॉल्ड। ठीक है। अभी डेटा ऑगमेंटेशन के लिए हाउ हाउ वी कैन डू डेटा ऑगमेंटेशन, and for that purpose we are having keras. So keras is going to help us for that. So keras data augmentation for images, for images. So you can just take help from keras image data processing. तो यहाँ पे आपको मिलेंगे like inbuilt functionalities to create multiple images from your existing images. ठीक है। So image data processing नाम का मॉडल है, and in this model सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट tf.keras.processing.image data set from directory। तो ये क्या है, मैं लेट मी टेल यू। लेकिन इमेज डेटा जनरेटर नाम का एक फंक्शन होता है, क्लास होता है इमेज डेटा जनरेटर। ठीक है। सो पहले तो हम ये सेट करते हैं कि आपके इमेजेस कैसे कैसे चेंज हो गए। लेट मी जस्ट गो हियर डायरेक्टली, केरास इमेज, केरास इमेज डेटा जनरेटर। ठीक है। तो इमेज डेटा जनरेटर,
ये देखो इमेज डेटा जनरेटर, तो ये जो क्लास है इसमें हम सेट करेंगे कि आपको कैसे कैसे इमेजेस चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फीचर वाइज सेंटर, सैंपल वाइज सेंटर। सेंटर मतलब ये अगर एक कोने कोने में इमेजेस वगैरह है उसको सेंटरिंग वगैरह करना है तो ठीक है। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन जैसे हमने डिवाइड बाय 255 किया था, दैट काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। लेट मी जस्ट गो हियर, रोटेशन रेंज, तो हमने जैसे रोटेट किया था कैट इमेजेस वैसे हम रोटेट भी कर सकते हैं। विड्थ शिफ्ट, हाइट शिफ्ट, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस भी कम ज्यादा कर सकते हैं। शेयर रेंज, शेयर मतलब जो यहाँ पे शेयरिंग ऑपरेशन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, दिस इज व्हाट योर शेयरिंग ऑपरेशन। So this is what your sharing operation, so you should know that. Then after that zoom range, then after that channel shift, film mode, अभी ये film mode वगैरह है ना, that is part of image processing. Horizontal flip false लिया है। हॉरिजॉन्टल फ्लिप मतलब मिरर इमेज। अभी whenever we are going to apply it for cat and dog classifier, तो वहां पे हम हॉरिजॉन्टल फ्लिप ट्रू रखेंगे लेकिन वर्टिकल फ्लिप फॉल्स रखेंगे, क्योंकि उल्टा इमेज डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, उल्टा कैट डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, जो जो खड़ा है ठीक ठाक से वही डिटेक्ट होना चाहिए, इसलिए मैं वर्टिकल फ्लिप फॉल्स ही रखूंगा। रिस्केल, सो रिस्केल मतलब अगर आपको स्केलिंग करना है, स्केल डाउन करना है, वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं। सो kind of options are available here, so you can just go through this documentation and you can use this documentation for implementing this. So ये सिर्फ आपका एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने ये ऑप्शन सेट किया कि आपके इमेजेस कैसे चेंज होने वाले, एंड वंस वी क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को आप इमेजेस प्रोवाइड करो सो दैट इट कैन क्रिएट द डेटा ऑगमेंटेशन। तो पहले ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करके ले लेंगे, एंड फॉर दैट पर्पस वी नीड टू इंपोर्ट इमेज डेटा जनरेटर। तो ये हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। सो फ्रॉम टेंसरफ्लो, टेंस टेंसरफ्लो dot keras dot pre-processing uh dot, I think images, what is that is pre-processing dot image data generator। import image data generator, ये क्लास में इंपोर्ट करता हूँ। लेट मी जस्ट इंपोर्ट दैट। Okay, so that is been imported, so let me just set। हाँ, image data generator, let me just show you its option to you। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे which options are available with this। ये क्यों नहीं दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, नहीं, ओके, सो आई थिंक उधर से हमें ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे। सो लेट मी जस्ट पास सम ऑप्शंस हो रही है। देखो ये जो इमेजेस है ये पिक्सल से 0 to 255 रेंज वाले, तो हमें रिस्केल तो यूज करना पड़ेगा। सो रिस्केल फैक्टर, तो वो जो रिस्केल फैक्टर है ये क्या करता है, आपके हर एक पिक्सल वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है। तो लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी वैल्यू बाय 1 डिवाइड बाय 255। अभी ये वन डॉट देने की जरूरत नहीं बेसिकली, बिकॉज ये फ्लोट ही होता है। आई वांट आंसर इट एज अ फ्लोट, सो पाइथन 3 में डिवाइड करेंगे तो फ्लोट ही देता है। लेट इट बी 1.0 डिवाइड बाय 255। रिस्केल ऐसे करेंगे बाद में। और क्या करना है हमें, अभी ज्यादा ऑप्शंस नहीं देंगे क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, इट विल टेक मच टाइम। सो ये सिर्फ हम छोटे से कोई ऑप्शंस यूज करेंगे। शेयर रेंज, आई एम गोइंग टू यूज शेयर रेंज।
शेयर रेंज, सो शेयर रेंज मतलब ये जैसे हम शेयरिंग ऑपरेशन मैंने बोला था, सो ये 20% शेयर हो जाएगा, लेफ्ट राइट लाइक अप और डाउन, तो ये 20% शेयरिंग हो सकता है। उसके बाद में जूम रेंज, लेट मी सेट zoom range, so that is also 20% I am going to set. Then after that horizontal flip हम true कर देंगे, horizontal flip we are going to make it as true, लेकिन जो vertical flip है वो false का false ही रखेंगे। So that is what we are going to do. So ये जो object है इसको मैं बोलता हूँ लाइक ये ट्रेनिंग का डेटा जनरेटर है, सो लेट मी कॉल इट एज ट्रेनिंग डेटा का ट्रेन डेटा जनरेटर। सो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, अभी तक इसको इसने इमेजेस प्रोसेस नहीं किए, इट इज द एम्प्टी जनरेटर, डेटा जनरेटर। तो इसको हम बोलेंगे कि कहाँ से इमेजेस लेने हैं फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग तो बाद में होगा, सिर्फ हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया इमेज डेटा जनरेटर क्लास का। सो लेट मी जस्ट डू दैट। सो एम्प्टी ऑब्जेक्ट इज बीन क्रिएटेड, empty object has been created. Now what we are going to do is we are going to use this object, we are going to use this object to uh, to like process the images. तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम बोलेंगे अभी कि यू कैन एक्सेस द इमेजेस सो फ्रॉम डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी कहाँ पे आपके सारे इमेजेस अवेलेबल है, यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट कॉपी दैट एंड इसको हम बोलेंगे, इसमें एक ऑप्शन होता है, इसको हम बताएंगे कि फ्लो फ्रॉम डेटा फ्रेम, फ्लो फ्रॉम डेटा फ्रेम, लेकिन ठीक है। सो फ्लो फ्रॉम डेटा फ्रेम, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी भी होता है डायरेक्टली, लेकिन ये उसमें कैसे होता है कि देखो देखो दो ऑप्शंस है। ये जो इमेज डेटा जनरेटर है, ये जो इमेज डेटा जनरेटर है इट इज काइंड ऑफ वन मशीन। ये जो है ना ट्रेन डेटा जनरेटर, ट्रेन डेटा जनरेटर, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, नाउ दिस इज काइंड ऑफ वन मशीन। उसको हम क्या देंगे, वन बाय वन इमेज देंगे, सो लाइक cat 01 डॉट jpg। तो इसको देंगे तो इट इज गोइंग टू गिव अस द मल्टीपल इमेजेस यूजिंग दिस सिंगल इमेज। सो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ ऐसे कुछ तो इमेजेस देगा, ये 4-5 इमेजेस देगा, वट एवर दैट इज। तो दिस इज व्हाट ट्रेन डेटा जनरेटर डज। सो ऑब्वियसली इसको हमें क्या देना पड़ेगा, ये इमेज देना पड़ेगा। उसके साथ ये ट्रेन डेटा जनरेटर और एक चीज करता है कि ये इसके साथ उसके लेबल्स भी होल्ड करता है। लेबल्स मतलब ये इसमें कैट है, कैट है, कैट है। अभी देखो हमारा जो भी पूरा डेटा सेट है उसमें कैट एंड डॉग मिक्स है, सो इट माई ये सॉरी कैट ही हो गया ऑब्वियसली, अगर आपने कैट का डेटा जनरेट किया तो कैट के कैट हो गए। सो लाइकवाइज इसको इनपुट में डॉग भी जा सकता है। सो ये जो डॉग है, ये डॉग के आज जब आप डेटा जनरेट करके नए इमेजेस बनाओगे तो उसका लेबलिंग क्या होना चाहिए, डॉग ही होना चाहिए, तो इसके लिए डॉग होना चाहिए। सो ये हम दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ट्रेन डेटा जनरेटर को कैसे पता चलेगा कि इस इमेजेस में कौन से ये है कि कैट है कि डॉग है, तो इसको दो तरीके से हम करेंगे। हम क्या करेंगे कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ही बनाएंगे एंड कैसे करेंगे कि एक ट्रेन इमेजेस है, तो ट्रेन इमेजेस में हम दो फोल्डर्स बनाएंगे, एक डॉग एंड ये कैट। एंड डॉग के अंदर सारे डॉग के इमेजेस होंगे, कैट के अंदर सारे कैट के इमेजेस होंगे। एंड उसके बाद में ये जो ट्रेन पूरा फोल्डर है ना, इसको ट्रेन डेटा जनरेटर को प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रेन डेटा जनरेटर देखेगा कि ट्रेन के अंदर सारे डॉग के अंदर सारे डॉग क्लासेस है, तो इसमें इसके अंदर जो भी सारे इमेजेस है उनका क्लास क्या बन गया, ये बन गया। एंड इसके अंदर जो इमेजेस है उनका क्लास क्या बन गया, कैट बन गया। सो इसको हम बोलते हैं फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी। it is called as flow from directory, it is called as flow from directory, it is called as flow from directory। अभी हमारा जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसमें जो ट्रेंड फोल्डर है उसमें कैट डॉग ऐसे कैसे भी है इमेजेस। सो ऐसे नहीं कि इसके अंदर कुछ डायरेक्टरी फोल्डर है, ट्रेन के अंदर कैट इमेजेस, कैट जेपीजी एंड डॉग जेपीजी एक साथ है। तो अगर हमें फ्लो फॉर्म डायरेक्टरी यूज करना है तो आपकी ये सारी इमेजेस सैग्रीगेट करने पड़ेंगे डिफरेंट फोल्डर्स में। बट बिकॉज ऑफ दैट ये जो भी है ना एक साथ इमेज है, इसलिए मैं क्या करूंगा एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ।
एंड उस डेटा फ्रेम में हम क्या करेंगे, जो इमेज नेम है, सो इमेज फाइल है, सो ये फाइल नेम लेंगे, उसमें क्या है, सो उसका कैटेगरी एंड फाइल नेम, ऐसा एक डेटा फ्रेम बनाएंगे हम, फाइल नेम एंड कैटेगरी। सो फाइल नेम ये है, कैटेगरी ये है, फाइल नेम ये है, कैटेगरी ये है, फाइल नेम ये है, कैटेगरी ये है। तो ऐसा एक डेटा फ्रेम हमें बनाना पड़ेगा एंड दिस डेटा फ्रेम वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू ट्रेन डेटा जनरेटर। सो ये जो डेटा फ्रेम है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं फ्लो फ्रॉम डेटा फ्रेम, फ्लो फ्रॉम डेटा फ्रेम। तो ये क्या करेगा, डेटा ट्रेन डेटा जनरेटर इसमें देखेगा पहला फाइल कौन सा है, उस फाइल को एक्सेस करो, उस फाइल के ऊपर उसके इमेजेस तैयार करो एंड उसका जो क्लास है वो क्लास क्या दे दो, कैट दे दो, क्योंकि कैट को कैसे भी चेंज करो वो तो कैट ही रहने वाला है, सो इट इज गोइंग टू बी कैट। नेक्स्ट इमेज रीड करो, अगर ये डॉग है, और डॉग हो सकता है, ये डॉग है तो इसके इमेजेस जनरेट करो, फॉर एग्जांपल ये किया, ये किया, ये किया, उसका नाम क्या दिया, डॉग, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इसमें डॉग है। सो दैट डेटा फ्रेम वी हैव टू क्रिएट नाउ। ये ऑप्शन हमारे पास अभी नहीं है बिकॉज हमारे पास ट्रेन के अंदर डॉग एंड कैट अलग अलग से फोल्डर्स में नहीं है, सारे एक साथ है। सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू क्रिएट वन डेटा फ्रेम एंड उस डेटा फ्रेम को हम पास करेंगे ट्रेन डेटा जनरेटर को। सो दैट डेटा फ्रेम वी हैव टू क्रिएट नाउ। तो वो डेटा फ्रेम पहले क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट गो टू हियर। सो इंस्टेड ऑफ बिफोर दिस बेसिकली लेट मी क्रिएट अ डेटा फ्रेम। सो ये डेटा फ्रेम मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। सो डेटा फ्रेम क्रिएट ट्रेन इमेज पे आप देख सकते हैं कि ट्रेन में ये यू कैन जस्ट सी कैट। अभी आपको शुरुआत में सिर्फ कैट दिखेंगे क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं, डॉग्स के बाद में इमेजेस है। सो कैट एंड डॉग इमेजेस आर टुगेदर इन दिस फोल्डर, ठीक है। सो सारे एक साथ है इसलिए प्रॉब्लम है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये जो है ना ये जो फोल्डर है ना, जो इस लोकेशन है, इसमें से सारे फाइल्स में लिस्ट करूंगा। सो लेट मी जस्ट लिस्ट ऑल द फाइल्स। सो फाइल नेम्स आई एम गोइंग टू कॉल इट एज फाइल नेम्स इज इक्वल टू os डॉट लिस्ट dir नाम का फंक्शन होता है। सो ये फंक्शन क्या करता है, इसको लिस्ट करेगा, यानी ये जो भी सारे फाइल नेम्स है ये फाइल नेम्स में रिटर्न कर देगा। सो फाइल नेम्स इज जस्ट द नेम ऑफ some kind of variable, so it is just going to be your list variable जिसमें सारे फाइल नेम्स हो। तो लिस्ट डायरेक्टरी हमें किसे करना है, इसको करना है। सो लेट मी जस्ट लिस्ट डायरेक्टरी दिस, क्योंकि इसके अंदर सारे फाइल, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैट से, ये कैट है, ये कैट है, ये डॉग है, ये डॉग है, यहाँ पे कैट एंड डॉग ऑल आर टुगेदर। तो मुझे क्या करना है कि फाइल नेम के साथ उसमें कैट है कि डॉग है वो मुझे फाइंड आउट करना है। सो लेट मी जस्ट लिस्ट डायरेक्टरी दिस, ठीक है। नाउ ये जो फाइल नेम्स है यू कैन जस्ट सी फाइल नेम्स, तो ये आप यहाँ पे ऐसे देख भी सकते हो कि इसमें सारे फाइल नेम्स लिस्ट में रिटर्न किए जाएंगे। सो यू कैन जस्ट सी दैट दिस इज सिंपली अ लिस्ट, यू कैन जस्ट सी दैट दिस इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये पहला फाइल नेम है, ये दूसरा फाइल नेम है, ये तीसरा फाइल नेम है। तो हम क्या करेंगे अभी, एक एक फाइल नेम रीड करेंगे एंड उसमें कैट है कि डॉग है ये हम फाइल नेम से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो पहला फाइल है, कैन यू टेल मी इसमें कैट है कि डॉग है, दूसरे फाइल में क्या है। So cat dog, you can just see over here and simply using this file name you can find out कि इसमें कैट है कि डॉग है। सो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, फाइल नेम्स तो आपका बन गया, अभी मुझे कैटेगरी फाइंड आउट करने, कैटेगरी। सो मैं क्या करता हूँ, फॉर एवरी फाइल, फॉर फाइल एवरी फाइल इन फाइल नेम्स, मतलब ये क्या हो गया अभी फॉर लूप। फॉर लूप में एवरी फाइल मतलब फाइल में पहले इटरेशन में ये स्ट्रिंग होगा, नेक्स्ट इटरेशन में ये स्ट्रिंग होगा, नेक्स्ट इटरेशन में ये स्ट्रिंग होगा। सो हर एक स्ट्रिंग से मुझे सिर्फ ये कैट बाहर निकालना है। सो इसका मतलब दिस फाइल इज गोइंग टू बी योर स्ट्रिंग। तो इस फाइल से मुझे सिर्फ कैट बाहर निकालना है। तो इट इज जस्ट लाइक दिस कि इट इज जस्ट लाइक दिस। सो आपका जो फाइल है, ये फाइल इज गोइंग टू बी योर वन स्ट्रिंग जिसमें लिखा है कैट डॉट 1233 डॉट जेपीज। तो अगर ये फाइल आपका स्ट्रिंग है, दिस इज सिंपली स्ट्रिंग, पाइथन स्ट्रिंग, तो मुझे बताओ कैट कैसे बाहर निकालोगे आप फ्रॉम फाइल स्ट्रिंग, कैट कैसे बाहर निकालोगे।
which functions you have to use. स्ट्रिंग से मुझे सबस्ट्रिंग निकालना है. cat is just the substring into this given string. iLog of झिरोथ लोकेशन. पण झिरोथ लोकेशन म्हणजे फक्त सी मिळेल. फाइल ऑफ झिरो म्हणजे फाइल ऑफ झिरो केला तर फक्त सी मिळेल, सिंगल कॅरेक्टर. हा. नाउ व्हॉट जे इज सेइंग दॅट फाइल डॉट स्प्लिट केलं मी. आता स्प्लिट कशावरती करायचंय मला? कॅट वेगळं पाहिजे, हे वेगळं, हे वेगळं. तर स्प्लिट कशावरती करायला लागेल? डॉट वरती. सो इफ आय डू दिस, हा ऑब्जेक्ट म्हणजे काय असेल? इट इज लिस्ट ऑफ. डॉट वरती स्प्लिट केल्यानंतर कॅट तुम्हाला वेगळा मिळेल, 1 2 3 3 वेगळा मिळेल आणि जेपीजी वेगळा मिळेल. दॅट यू कॅन हॅव. आणि हा जो ऑब्जेक्ट आहे, दिस इज युअर लिस्ट ऑब्जेक्ट इज. तर त्याच्यावरती जर मी झिरो इंडेक्स वापरला तर झिरो इंडेक्स म्हणजे काय? सिम्पली कॅट मिळेल. सो अल्टिमेटली व्हॉट वी नीड टू डू, फाइल्स फाइल डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करायचं डॉट वरती आणि हे जे लिस्ट आहे त्याचा झिरोथ एलिमेंट घ्यायचा. सो दिस इज व्हॉट गोइंग टू बी युअर युअर क्लासेस कॅट ऑर डॉग. सो इथं कॅट येईल. So this is how we can have that. So here simple है. This is Python programming simply. Let me just go here and file dot split. Split करणार आपण डॉट बेसिस वर and then after that it's zeroth. So zeroth म्हणजे लिस्ट मधलं फक्त कॅट. आता याच्या केस मध्ये जर स्प्लिट केलं तर डॉग हा झिरोथ लोकेशन ला आहे, इथं झिरोथ लोकेशन. सो वी वॉन्ट झिरोथ लोकेशन इन टू दॅट स्प्लिटेड list. So this I'm going to store into one empty list. So उस लिस्ट को मैं बोलता हूँ categories. Categories dot append. तो इसमें मैं append कर दूंगा इसको. So इक्वल टू नहीं बोलेंगे, append बोलेंगे बिकॉज लिस्ट में append करते हैं. तो कैटेगरीज, सो इस कैटेगरीज नाम का लिस्ट मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा. सो दैट इज कैटेगरीज इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट. तो ये जो कैटेगरीज है इसमें क्या करूंगा, मैं एक एक फाइल रीड करूंगा और उसका कैटेगरी इसके अंदर अपेंड करूंगा. सो अल्टीमेटली जब ये कोड में रन करूंगा तो मेरे कोड में फाइल नेम्स में सारे फाइल नेम्स है एंड कैटेगरीज में सारे कैटेगरीज है उसके. एंड using these two list I can create a data frame. So let me create a data frame is equal to. अभी यूजिंग लिस्ट अगर डेटा फ्रेम बनाना है तो कैसे बनाते हैं उसको? सो लेट मी जस्ट यूज. पता है किसी को कि अगर मेरे पास दो लिस्ट है, वो दो लिस्ट एज अ दो कॉलम काम करने वाले, तो इसको डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो आई एम गोइंग टू डू इट यूजिंग डिक्शनरी. तो ये जो डिक्शनरी है ना, इसमें हम देते हैं फाइल नेम, कॉलम नेम. तो पहला जो कॉलम नेम है इसको मैं बोलता हूँ फाइल नेम. पहला जो कॉलम है उसका नाम है फाइल नेम एंड उसके लिए जो वैल्यूज है ये मैं इस लिस्ट से प्रोवाइड करने वाला हूं. सो लेट मी जस्ट राइट दिस फाइल नेम्स, फाइल नेम्स. ठीक है. एंड दूसरा जो कॉलम है उसका नाम है कैटेगरी. सो कैटेगरी. सो इसका जो कॉलम का नाम है वो कैटेगरी है एंड उसके वैल्यूज मुझे कहाँ पे मिलेंगे? कैटेगरीज नाम के कॉलम में मिलेंगे. सो लेट मी कॉल इट एज कैटेगरीज. ठीक है. सो ये बन गया आपका डेटा फ्रेम एंड ये बनने के बाद लेट मी जस्ट शो यू व्हाट इज df डॉट हेड. तो आप देख सकते हैं पहले पहले जो 5 फाइल से वो ध्यान में रखो. कैट डॉग कैट, इसके नाम भी ध्यान में रखो सो दैट आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसने कैसे किया. तो ये जो है ना ये आपका पहला कॉलम बनने वाला है. जो भी कैट डॉग कैट डॉग कैट डॉग कैट डॉग, ये जो है ना ये आपका पहला ये जो है ना ये आपका कैटेगरीज कॉलम बनने वाला है. यू कैन जस्ट सी नाउ. ये आप देख सकते हैं. सो आप देख सकते हैं फाइल नेम भी है एंड उसकी कैटेगरी भी है, उसकी कैटेगरी भी है. सो ये डेटा फ्रेम अभी बन गया आपका. दिस डेटा फ्रेम यू हैव क्रिएटेड.
Now you have to use this data frame in train data generator. तो let me just go and use train data generator dot, अभी हम क्या बोलेंगे, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, सॉरी फ्लो फ्रॉम डेटा फ्रेम। किस डेटा फ्रेम से फ्लो करना है हमें, डीएफ से फ्लो करना है हमें, राइट। इस डेटा फ्रेम से हमें फ्लो करना है। अभी इस डेटा फ्रेम से जब हम फ्लो करेंगे, whenever we are going to flow from this data frame, तो ये क्या करेगा, डेटा फ्रेम से पहला फाइल नेम रीड करने वाला है, तो ये फाइल को ये रीड करेगा, उसके बाद में इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा जो हमने डेटा जनरेटर के अंदर मेंशन किए। लेकिन ये सिर्फ फाइल नेम से फाइल एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फाइल नेम कहाँ पे स्टोर्ड है ये भी हमें बताना पड़ेगा, एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर्ड है। तो उसका पाथ अभी हमें यहाँ पे देना पड़ता है। सो आई थिंक वो पाथ हमने ऑलरेडी कॉपी करके रखा था, यस। सो दिस इज द पाथ ऑफ दैट थिंग ओवर हियर। अभी और एक चीज, ये जो डेटा फ्रेम ने हमने रीड किया है डेटा फ्रेम, इसमें आपको फाइल नेम कहाँ पे मिलेगा, कैटेगरी कहाँ पे मिलेगा। सो बेसिकली हमने ये कॉलम नेम्स दिए, लेकिन इस फ्लो फ्रॉम डेटा फ्रेम ये जो फंक्शन इसको बताना पड़ता है कि आपको फाइल नेम्स कहाँ पे मिलेंगे एंड कैटेगरीज कहाँ पे मिलेंगे। सो फाइल नेम्स होते हैं आपके एक्स कॉलम। सो एक्स कॉलम इज व्हाट, पहला वाला कॉलम, दैट इज फाइल नेम। सो दैट इज योर इनपुट कॉलम, दैट इज योर इनपुट। इसको आप बोल सकते हैं कि दिस इज व्हाट योर इनपुट, राइट। एंड आपका आउटपुट मतलब y एक्चुअल, ये y एक्चुअल है आपका। सो लेट मी जस्ट कॉल इट एज y एक्चुअल। सो दैट इज y columns. Y column is equal to your category column. Category. So this is name of column over here. That is category. Then after that, one more thing we have to do is, अभी ये जो सारी इमेजेस है जो बनेंगे, इनका सबका साइज सेम चाहिए मुझे। आई जस्ट वांट ऑल साइज सेम। साइज सेम क्यों चाहिए, बिकॉज जब हम कन्वोल्यूशनल लेयर को ये प्रोवाइड करेंगे तो सबका साइज सेम होना चाहिए। सो इसको हम रिसाइज करेंगे, तो रिसाइज हम बेसिकली ओपन सीवी से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम उसको रिसाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बोलते हैं टारगेट साइज। तो ये जो टारगेट साइज, जो भी इमेज रिसाइज होंगे, ये सारे 224 पिक्सल बाय 224 पिक्सल्स में हम कन्वर्ट करेंगे। आप बोलोगे 224 बाय 224 ही क्यों? क्योंकि देखो, पहले तो हम हमारा कन्वोल्यूशनल लेयर बनाने वाले हैं नेटवर्क, लेकिन जब बाद में हम वीजीजी यूज करेंगे, तो उस टाइम पे फिर से ये टारगेट साइज आपको अगर अलग रखा है तो फिर से ये 224 बाय 224 आपको करना पड़ेगा। सो यस, दैट इज नॉट लाइक वो बाद में फिर हेडेक बन जाएगा। सो बेटर है कि मैं अभी ओरिजिनल 224 बाय 224 में ही करता हूँ, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट आल्सो, ये जो ट्रेन डेटा जनरेटर ऑब्जेक्ट है ना, जो भी ये आपको डेटा देगा, इट इज जस्ट गोइंग टू रिटर्न यू द डेटा। सो इसको मैं बोलता हूँ ट्रेन डेटा, सिंपली ट्रेन डेटा। तो यहाँ पे जो डेटा आएगा, तो ये डेटा डायरेक्टली हम ट्रेनिंग के लिए फिट कर सकते हैं। वी कैन डायरेक्टली प्रोवाइड दिस डेटा फॉर फिटिंग पर्पस। तो इसलिए इसके जो बाकी के ऑप्शन है, लाइक जैसे हम इसको ट्रेनिंग के लिए फिटिंग के लिए दे रहे, सो लेट मी जस्ट डू इट लाइक दिस, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा, ठीक है। Okay, target size, and then after that also we need to do कि इसका बैच साइज भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बैच साइज। सो ये बैच बैच साइज भी बना देगा खुद से। सो 32, so that we can directly provide it for the fitting purpose. And then after that, class mode. So class mode जो है ये आपका categorical है। So basically we are having two categories, so categorical, कैटेगरिकल ही देना है क्लास मोड, बाइनरी नहीं देना है, बिकॉज जो भी आपका आउटपुट ले रहा होगा वहां पे दो न्यूरॉन चाहिए हमें। एक बताएगा आपका डॉग का परसेंटेज, दूसरा बताएगा आपका कैट का परसेंटेज। सो इसलिए आई वांट दिस एज अ कैटेगरिकल, दिस मोड एज अ कैटेगरिकल। ओके, सो yes, this is what your train data is going to be created. So it is getting created. So I think it is in execution. ये देखो, ये इसने आउटपुट क्या दिया, फाउंड 25,000 वैलिडेटेड इमेज फाइल नेम्स बिलोंगिंग टू टू क्लासेस। तो इसका मतलब इसने 25,000 इमेजेस इसको मिले हैं जिसमें दो क्लासेस है, कैट एंड डॉग।
तो इसका मतलब दिस इज सक्सेसफुल, दिस इज सक्सेसफुल, ट्रेन डेटा जो है दैट इज सक्सेसफुल, ट्रेन डेटा जो है दैट इज सक्सेसफुल। तो बैच साइज आप देख सकते हैं, क्लास मोड देख सकते हैं, क्लास इंडाइसेस देख सकते हैं। क्लास इंडाइसेस मतलब देखो, whenever we are going to provide this data for training purpose, तो जब लॉस निकलेगा, लॉस, तो कैट एंड डॉग वी कैन नॉट यूज, उसके बजाय हमें नंबर्स चाहिए। तो उसने कौन से नंबर्स यूज किए हम यहाँ पे देख सकते, कैट के लिए उसने 0 यूज किया है, डॉग के लिए उसने 1 यूज किया है। सो दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन जस्ट सी इनटू ट्रेन डेटा। तो काफी सारी चीजें यही हैंडल करता है, वी डोंट नीड टू डू दैट। क्लासेस कौन से वो भी यहाँ पे दिखेगा। Then yes, file names, file paths, get classes. So yes, काफी सारे functions यहाँ पे available है। So yes, this is what about your training data is. So using this training data, we can just create our convolutional CNN layer और CNN model। तो वो CNN मॉडल को हम ये डायरेक्टली ट्रेनिंग का जो भी डेटा हमने ऑगमेंटेशन से क्रिएट किया है वो डेटा डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। You can just see what is length of this train data. So what is that? 782। अभी आप बोले 782 कैसे सर? सी, इसका जो एक बैच बन गया है ना उसका ये साइज है। तो आप देख सकते हैं 25,000 इमेजेस है, एंड उसमें जो बैच साइज है दैट इज 32। तो एक बैच कितने का बना? सो ये एक बैच इतने 782। तो ये जो ट्रेंड डेटा है ये इसने बैच का साइज दिया है, ठीक है। सो बेसिकली ये डेटा अभी तक उसने डायरेक्टली क्रिएट नहीं किया है, it is going to create that at the time of fitting purpose. I think let me just see what is size of this trend data. Import sys dot get size, कौन सा फंक्शन है, get size of and trend data. So that is only 64K, that is sorry, that is only 64 bytes। तो ऑब्वियसली इसमें डेटा अभी तक तो जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना ये इसने सिर्फ सब कुछ मतलब लोड करके लिया है कि यस यहाँ पे मुझे इमेजेस मिलेंगे इस डेटा फ्रेम में, उसमें क्लासेस मिलेंगे, वाई लेबल्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, ये सब कुछ लोड करके रखा है। एंड वेन एवर वी आर गोइंग टू फीड द डेटा, उस टाइम पे वो डेटा जनरेट होगा, देन फिट होगा, जनरेट फिट जनरेट फिट जनरेट फिट। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज अगर यहाँ पे आपने सारे डेटा अभी जनरेट करके रखा तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी मोर देन 817 MB। सो ऑलरेडी 800 MB से ज्यादा बनेगा अगर हमने यहाँ पे डेटा जनरेट करके रखा तो। सो दैट इज नॉट गुड फ्रॉम मेमोरी परस्पेक्टिव, सो मेमोरी यूटिलाइजेशन परस्पेक्टिव, दैट इज व्हाई वी आर नॉट क्रिएटिंग दैट डेटा राइट नाउ, वी आर गोइंग टू क्रिएट इट ऑन रन टाइम। तो क्रिएट करो, मतलब एक बैच क्रिएट करो, ट्रेन करो, बाद में उसको वो जो क्रिएटेड इमेज उसको डिलीट करो, नेक्स्ट बैच क्रिएट करो, ट्रेन करो, नेक्स्ट बैच उसको डिलीट करो, नेक्स्ट बैच क्रिएट करो, ट्रेन करो, ऐसे। सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स इज, ये क्या करता है, अगर ये आपके मॉडल को ट्रेन करना है तो पहले ये 782 इमेजेस क्रिएट करेगा, पहला बैच क्रिएट करेगा। सो क्रिएट करने के बाद उसको फिट करेगा, फिट करने के बाद जो भी इमेजेस है जो भी वेट्स है वो चेंज हो गए, ये वेट चेंज होने के बाद इसको ये डिलीट कर देगा एंड नेक्स्ट बैच क्रिएट करेगा। सो एट अ टाइम इन अ मेमोरी कभी भी 782 से ज्यादा इमेजेस नहीं होंगे, 782 से ज्यादा इमेजेस नहीं होंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू रिड्यूस द मेमोरी यूजेस। अदरवाइज सारे इमेजेस एक बार अगर हमने क्रिएट करे तो ये कितने तो जीबी का डेटा है, कितने तो जीबी का रैम लेगा ये, सो दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। So what we are going to do after this, we are going to create our convolutional model. After this, it is going to create a convolution model. So to create a convolution model, we need to import some libraries. So from TensorFlow dot keras dot models. हा, टेस्टिंगचा डेटा ऍक्च्युअली टेस्टिंग मध्ये ऑगमेंटेशन करत नाही आपण, टेस्टिंगला ऑगमेंटेशनची गरज नाही,
augmentation, why we did augmentation of training data set, because we need to increase the data set for training purpose. टेस्टिंग मध्ये फक्त आहे ती इमेज लोड करणार, फक्त काय करणार त्याच्यामध्ये तो प्रॉपर साईज मध्ये असावा, दॅट्स इट. आणि वन मोर थिंग, दॅट मस्ट बी स्केल्ड. So it must be in 224 by 224, and then after that we are going to scale it by dividing 255. बाकीच्या गोष्टी करायची गरज नाही. कोणते? हे या वाल्या गोष्टी. या शेअर करायची गरज नाही, झूम करायची गरज नाही, हॉरिझॉन्टल फ्लिप नाही, बिकॉज दॅट इज द ओरिजिनल इमेज. ओनली दॅट इमेज वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट आउट. सो दॅट विल सी लेटर ऑन how to work with test images. ठीक है. Okay, so models, let me import sequential, right? Sequential model we are going to create. Then after that, same from TensorFlow dot keras dot layers import. अभी लेयर्स में कौन से लेयर्स हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे? ऑब्वियसली कन्वोल्यूशनल लेयर, कन्वोल्यूशन में कन्वोल्यूशन 2D. सो कन्वोल्यूशन 2D इज फॉर इमेजेस, convolution 1D is for your time series data, plain data, time series data. Convolution 3D is for kind of another functionality, like जहाँ पे आपको like videos पे basically हम बोल सकते हैं convolution 3D. ठीक है. So convolution 2D we are going to use. Then after that max pooling we are going to use, max pool 2D. उसके बाद में वी आर गोइंग टू यूज, अभी ये लेयर से डेंस भी हमें लगने वाला है यहाँ पे, डेंस. उसके बाद में फ्लैटन भी लगेगा, फ्लैटन. टू रिड्यूस ओवर फिटिंग वी नीड ड्रॉप आउट. ये बताऊंगा मैं क्या है. आई थिंक ड्रॉप आउट मैंने नहीं बताया आपको. I think these layers are sufficient. Okay, so let me just import that. So let me create an empty model. So model is equal to sequential, that is empty model. So ये empty model बना है. Then after that model dot add. तो इसमें सबसे पहले हम कन्वोल्यूशनल लेयर ऐड करेंगे. सो कन्वोल्यूशन लेयर, कन्वोल्यूशन 2D. अभी इसके पैरामीटर्स कन्वोल्यूशन 2D जो पहला लेयर है उसमें हम क्या क्या इनपुट या तो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे कन्वोल्यूशन 2D. तो यहाँ पे हमें क्या क्या सेट करना पड़ेगा कन्वोल्यूशन 2D. यू कैन जस्ट सी विच पैरामीटर्स वी नीड टू सेट फॉर दिस. अभी इसके ऑप्शन यहाँ पे कैसे दिखेंगे. ठीक है. हाँ, वी कैन जस्ट डायरेक्टली यूज. सो कन्वोल्यूशन 2D हमें क्या क्या बताना पड़ता है कन्वोल्यूशन 2D के लिए. देखो कितने कर्नल्स यूज करने हैं, कितने बाय कितने का कर्नल होगा, इनपुट शेप क्या होगा, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होगा, दैट काइंड ऑफ स्टफ. सो अगर आपको देखने तो यू कैन जस्ट सी ओवर हियर कॉन 2D केरास. तो यस, आप देख सकते हैं अभी फिल्टर्स, पहला फिल्टर से बाद में कर्नल साइज है. स्ट्राइड्स तो बाय डिफॉल्ट 1 by 1 होता है. पैडिंग इज वैलिड, सो वैलिड आपको सेम यूज करना है पैडिंग, तो यू कैन यूज. बाद में वी आर गोइंग टू यूज एक्टिवेशन एंड इनपुट शेप. सो लेट मी जस्ट यूज दैट कि फिल्टर्स, फिल्टर्स ना, फिल्टर्स. सो ये फिल्टर सिर्फ क्यों बोल रहा है filters. Okay, so filters is equal to, here I am going to use 64 filters. Kernel size I am going to use is ठीक है, kernel size is, I am going to use 3 by 3 kernels. So basically 3 by 3 kernels I am going to use. I think kernel size, yes. Then after that start, ठीक है, padding और activation. So activation, so activation is ReLU. We use ReLU activation, and that is input shape. Input shape, input shape. So input shape जो है ये क्या है, I think 224 by 224, right? Yes. So 224 by 224 ये तो size
कितने चैनल्स है इसमें? अभी एक्चुअली देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि ये जो कैट एंड डॉग है ना, एक कलर्ड इमेज है, सो ऑब्वियसली इट इज हैविंग 3 channels. That is what your first layer is. Then after that we will add model.add max pool layer. So that is max pool 2D, and in this max pool 2D we are going to define uh, 2 by 2 stride. So basically that's it, बाकी कुछ नहीं. So I think default 2 by 2 होता है, so let me just use by default 2 by 2 होता है, ठीक है, it let it be, so no issues. Then after that I am just going to add such kind of 3 or 4 layers. 4 layers convolution I am going to add. So बाद में ये 64 का 128 filters I am going to do. इसके बाद में इसके भी filters होंगे 256 let's say, ठीक है. Let me just use 3 only, क्योंकि ये बहुत ही टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा फॉर फिटिंग इट अप. इनपुट से बाद में यूज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये इट विल जस्ट यूज द प्रीवियस इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस लेयर्स. मैक्सपुल 2D, सो ये कर्नल्स बाद में मैंने फिल्टर्स इंक्रीज किए. कर्नल साइज इज 3 by 3 एवरीवेयर. तो ये बन गया आपका मॉडल. तो ये मॉडल एम्प्टी है, सो लेट मी जस्ट कंपाइल मतलब मॉडल डॉट, लेट मी जस्ट ऐड मॉडल डॉट कंपाइल हियर ओनली. मॉडल डॉट कंपाइल में व्हाट वी सेट, नहीं इसमें और चीजें हैं ना. सो आई फॉरगेट अबाउट डेंस लेयर्स, व्हाई दिस इज सो. मॉडल डॉट, अभी इसके बाद में मुझे क्या करना है, फ्लैट करना है ना इसको, फ्लैटन. सो ये तो भूल गया, फ्लैटन किया. फ्लैटन के बाद में वी आर गोइंग टू ऐड मॉडल डॉट ऐड. अभी इसके बाद में आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड डेंस लेयर. सो ये जो डेंस लेयर है, इसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आई एम गोइंग टू यूज इज लेट्स से 100. एंड इसमें जो एक्टिवेशन आई एम गोइंग टू यूज, एक्टिवेशन इज गोइंग टू बी, यहाँ पे भी मैं रेलू यूज करता हूँ एक्टिवेशन. और क्या चीजें है यहाँ पे सेट करने जैसे डेंस में, कर्नल इनिशियलाइजर, लेट इट बी बाय डिफॉल्ट क्लरट इनिशियलाइजर. इनपुट शेप देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फ्लैटन से ले लेगा. दैट्स इट. सो उसके बाद में last layer I am going to add, that is the output layer. So model dot add dense again. So last layer में अभी 2 ही classes है, so 2 classes के लिए 2 neurons needed. Which activation we need to use over here, can you tell me? कौन सा activation function use करना चाहिए output layer में? Yes, right. That is softmax. को अगर आपके number of classes उतने आपके neurons है, तो we must use the softmax. And activation softmax and last में और क्या चाहिए? That's it. That's it. Yes, that's it. Compile में, now compile we are going to decide optimizer. So optimizer I am going to use is Adam. Optimizer is equal to Adam. And और एक चीज हमें define करना है, that is loss. Loss is equal to कौन सा loss use करना पड़ेगा यहाँ पे? Which loss? सॉफ्टमैक्स फंक्शन के लिए कभी भी ध्यान में रखो, अगर सॉफ्टमैक्स आज आप यूज कर रहे हैं एक्टिवेशन में, तो लॉस इज ऑलवेज गोइंग टू बी कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी. कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी. कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, एंड ऑलरेडी दिस इज इन वंस एंड जीरोस. मतलब जो आपका वाई कॉलम है, जैसे हमने एमनिस में देखा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये आपके जो थे ये आपने वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट किए थे ना, सो दैट इज आल्सो डन बाय दिस, बिकॉज बेसिकली दो ही क्लासेस है, तो दो क्लासेस में आइदर वंस और जीरो है, सो बेसिकली कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी की नहीं ना, बाइनरी हम कब भी यूज करेंगे अगर मेरे पास सिंगल आउटपुट न्यूरॉन है, सिंगल आउटपुट न्यूरॉन। तो सिंगल आउटपुट न्यूरॉन के लिए डायरेक्टली इट इज गोइंग टू बी बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। लेकिन यहाँ पे दो न्यूरॉन से अलग अलग, बेसिकली हम बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो वंस एंड जीरोस मतलब एक न्यूरॉन से कर सकते हैं ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैट है तो कैट का परसेंटेज भी चाहिए मुझे एंड डॉग का परसेंटेज भी, मतलब जो भी इमेज दिख रहा है वो कितने परसेंट कैट है वो कितने परसेंट डॉग है, ये दोनों वैल्यू मुझे चाहिए। एंड उसके ऊपर आर्ग मैक्स करके आई कैन जस्ट प्रेडिक्ट व्हाट इज इट्स क्लासेस। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डू इट कैटेगरिकल क्रॉस एंथ्रापी। ठीक है। सो दो यहाँ पे न्यूरॉन्स यूज किए इसलिए। ठीक है। कंपाइल, ठीक है, मॉडल डॉट कंपाइल, ये क्या बोल रहे हैं, इनवैलिड सिंटैक्स आउटपुट, ओह ये यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक, सॉरी, यस। हाँ मॅट्रिक्स, मॅट्रिक्स हाँ आपल्याला बघायचं आहे ना की हे काय, मॅट्रिक्स इज इक्वल टू I just want to see accuracy, accuracy, so that is also needed. So this model has been created, now we can just fit this model, we can just fit this model. So ये जो मॉडल है ना, इस मॉडल को आई एम जस्ट गोइंग टू फिट। सो फिट में आपको फिट करना है फ्रॉम डेटा जनरेटर। तो यहाँ पे फिट के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, फिट जनरेटर। तो अभी फिट मतलब डायरेक्टली डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में तो यूज करो, लेकिन अगर जनरेटर से आपको जनरेट करना है देन ट्रेन करना है तो यू नीड टू यूज फिट जनरेटर। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस। सो आई आई होप, अभी फिलहाल एक काम करते हैं, ये जो फिटिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो कल करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट मच टाइम। लेट मी जस्ट शो यू मॉडल समरी सो दैट आपको जैसे मॉडल बना है वो आप समझ में आ जाएगा आपको व्हाट इज दिस मॉडल इज। तो आप देख सकते हैं पहला जो लेयर है उसमें 224 by 224 का इनपुट है, 64 कर्नल्स है। तो विथ वैलिड पैडिंग इट इज जस्ट गोइंग टू बी 222 by 222 by 64 पैरामीटर्स, यू कैन कैलकुलेट आउट। हाफ में कन्वर्ट किया, इट इज गोइंग टू बी लाइक 2 by 2 पुलिंग। बाद में ये आप देख सकते हैं फिर से कन्वोल्यूशन 3 by 3 कर्नल है, 128 कर्नल्स पैरामीटर्स, सो दैट इज व्हाट यू कैन सी। एंड दैट इज जस्ट गोइंग टू बी 54 by 54 by 128। ठीक है। So like you can just see, and you can just simply see trainable, total trainable parameters, that is what, that is almost 17,000 like you can say sorry, 17 million parameters we are having over here. 17 million is too big, it is too big। So I think ये आपका मॉडल ट्रेन होने के बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो ऑब्वियसली ये मॉडल को हम छोटा कर देंगे बाद में, टुमारो विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके। सो दिस इज हाउ योर मॉडल इज गोइंग टू लुक लाइक एंड या, सो दिस इज अबाउट योर कैट एंड डॉग क्लासिफायर। ठीक है। सो विल डिस्कस अबाउट द लेटर पार्ट इन टुमारो सेशन। ठीक है।